actually like this way. So we did Phycomycetes, we did Ascomycetes. Now we will do we did Phycomycetes. We did Zygomycetes? I think we did Phycomycetes, we did Zygomycetes and Ascomycetes. We were supposed to do Basidiomycetes, then I will complete with the Deuteromycetes. Is it correct? Afia? So I have done only Ascomycetes. I don't know. And Zygo and Basidio? Oh, sorry, Zygo and Phycomycetes? No, sir. That's not possible actually. Now I am confused because in one class I would have definitely covered fungal classification as per my record. Hold on. Every time the topic which I cover, I always note it down. Last time we had class. I had class with you. 12th of October. In 12th of October, we did protozoa, we did fungal classification, and after fungal classification, I think we have started with Phycomycetes. Check it once again, please. Check your notes. Is it there? Fungal classification? No, sir. I haven't written all this. Okay, so no issue. Just to start with the fungal classification. Okay, just start with it. Look, the fungi, we divide fungi into 5 classes actually. So the fungi, either you can call it mycota, or mycota is an old term. So nowadays we are not using term mycota. Nowadays we are using term kingdom fungi, right? So previously we used to call it kingdom mycota. Now on the basis of sexual reproduction, we have divided fungi into two parts. Those fungi which do not have sexual reproduction, means the fungi where sexual reproduction is absent, and the second class of the fungi where sexual reproduction is present. Again, those fungi in which, irrespective of their characteristic, those fungi which have which do not have sexual reproduction, we have kept them in a separate class, and we call this class Deuteromycetes, right? So these are called Deuteromycetes. After that, those fungi in which sexual reproduction is present, again we have divided them into 2 classes. First, primitive fungi, and second, advanced fungi. Primitive fungi means those who came in the who came in this world previous to these modern fungi. So they are old fungi, they are primitive fungi. Why we are calling them primitive fungi? Because their mycelium is aseptate. So aseptate mycelium means, Afia, aseptate mycelium means? So they don't have any division. Exactly. Cenocytic mycelium, right? We discussed it. Again, the primitive fungi, it has been divided into 2 classes: Phycomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, and Basidiomycetes, right? So the advanced fungi in Asco and Basidio. So in total, there are 5 classes: Phyco, Zygo, Asco, Basidio, and again then Deuteromycetes. One more thing I want to bring in your notice, that when you while going through your NCERT, you will find that Zygomycetes has not been given over there in your NCERT. It is not there. It is missing in your NCERT, in fact. But actually, this is the classification. This is the actual fungal classification. So rather than going to the rest of the things are present in your NCERT, like Phyco is there in your NCERT, Asco is there in your NCERT, Basidio is there, and Deutero is there. But Zygomycetes is missing, right? Clear? So what you have to do, you have to take a screenshot of this one, and you have to copy this kind of this classification only. Clear? Yes, sir. Okay. Now let's start with the Phycomycetes. Okay. So before going into Phycomycetes, I would like to bring I would like to show you a diagram of Phycomycetes. So the fungi which belong to Phycomycetes, they are called algal fungi. And the best example of these algal fungi is like Phytophthora infeston, right? So before starting, I want to give you some examples. So the first class is of fungi
class 1, that is Phycomycetes. So Phycomycetes, these are also called algal fungi. They are called algal. Right? We also call them algal fungi. So the best example of Phycomycetes, there are some diseases which are caused by these fungi. They are parasitic, actually. So whenever I say that you have to note it down the example, or you have to keep it in mind. So you have to make a star and you have to keep them in mind, because they are the only things which are questioned in NEET exams. So Afia, I want to know that which part you belong to. Where are you from? Sir, Delhi. Delhi. Acha, theek. So mean you know Hindi, है ना? Yes, sir. Okay. Actually, there are some batches where students don't know Hindi, so I have to ask that. Okay. So look, Afia. So these are the actually points which asked in your NEET examination. So you will get these questions only. So आपको करना क्या है कि जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, without any double thought, you have to cram all those questions. और इसके लिए आप दोबारा फिर से एक जो भी previous क्वेश्चन पेपर आप नीट का देखोगे, you will find frequently these questions. So first example of Phycomycetes, member of Phycomycetes is Phytophthora infeston. तो एक फंगस है इसका, उसका नाम है Phytophthora infeston. So actually Phytophthora infeston एक जो फंगस है, ये करता क्या है? ये एक डिजीज कॉज करता है, and the disease is called late blight of potato. Actually, what happens in late blight disease, Afia? In late blight disease, the tuber of potato get rotten. And what is the peculiarity with this fungi? Actually, क्या हुआ कि आयरलैंड में 1845 में आयरलैंड में एक फेमाइन आई, है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं आयरिश फेमाइन, और कई जगह आपको लिखा मिलेगा दैट इज ग्रेट आयरिश फेमाइन, आयरिश फेमाइन। तो आयरलैंड में जो फेमाइन है, जिसको हम आयरिश फेमाइन बोलते हैं, इस आयरिश फेमाइन में बहुत सारे लोग मारे गए, एंड द सोल रीजन बिहाइंड दिस फेमाइन वाज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। इस फंगस ने पूरे आयरलैंड की जितने भी पोटैटो की क्रॉप्स थी, उन सब क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से आयरलैंड में फेमाइन है। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पहला मेंबर समझ आया? तो आपको याद क्या रखना है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन डिजीज कौन सी है? लेट ब्लाइट डिजीज। तो कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखो सेकंड इसका एग्जांपल है ना? वो जो सेकंड एग्जांपल है, एक डिजीज होती है डैम्पिंग ऑफ, है ना? तो सेकंड इज डैम्पिंग ऑफ डिजीज। जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज एक फंगस से होती है, उसका नाम है पाइथियम। ठीक है, पाइथियम फंगस से होती है ना? एक और डिजीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट। तो व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट जो देखो डैम्पिंग ऑफ एज सच किसी पर्टिकुलर प्लांट में होती है। व्हाइट रस्ट जो होती है, ये जनरली होती है क्रूसीफर्स में। क्रूसीफर जानते हो? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन होते हैं? बताओ भाई आफिया। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। क्रूसीफेरी फैमिली का कौन मेंबर है? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। देखो कैंडिडा से होती, ये तीनों इसी के मेंबर है। आफिया क्रूसीफेरी, एनी आइडिया? नो सर। देखो सिंपल है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? क्रूसीफर्स होते हैं मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का हम लोग प्लांट पढ़ते हैं, याद है ना? 10th के हमारे सिलेबस में है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो है वो क्रूसीफर है, वो क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है ना? तो क्रूसीफेरी का जो पिक्यूलर मेंबर है दैट इज मेनली मस्टर्ड, है ना? तो मस्टर्ड इसका मेंबर होता है क्रूसीफेरी का। और क्रूसीफेरी फैमिली में मेनली कौन आते हैं? जैसे मस्टर्ड हो गया, एक ये रेफिनस सटाइवा, मतलब जिसको हम लोग रेडिस बोलते हैं, मूली बोलते हैं, वो भी इसी का क्रूसीफेरी का मेंबर है।
ठीक है, इन सब में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है, तो उससे क्या होता है, जो लीव्स होती है उस पर व्हाइट कलर की डस्टी पाउडर ऊपर बन जाता है। ठीक है, नोट किया इसको, नोट करो पहले। Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान का एक डायग्राम दिखाता हूँ। हालांकि इट्स अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन कीप इट एज लाइक स्क्रीनशॉट, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, आप समझ जरूर जाइए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान कैसे फंक्शन करता है। Phytophthora infestum, that is that. हाँ ये रहा। देखो आप यार, ये जो फंजाई है, ये रहा आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टम। अब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टम क्या करता है, ये लीव्स को ऐसे ब्लैक ब्लैक सी ऊपर से लीव दिखाई देने लगती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये ट्यूबर्स को इन्फेक्ट करता है। ये देखो ये इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है। इन्फेक्टेड ट्यूबर्स में क्या होता है, इनमें फंजाई ग्रो करता है। फंजाई ग्रो करने के बाद इसके स्पोर जो होते हैं वो मॉइस्चर से फैलते हैं, और मॉइस्चर से इसके जूस स्पोर फैलते हैं, और ये जूस स्पोर क्या करते हैं, जाते हैं और बाकी के बाकी ट्यूबर को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। ये लाइफ साइकिल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टम की। क्लियर है, समझ आया? ये फंजाई है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टम, Yes. राइट? ठीक है, अब आप कैरेक्टरिस्टिक नोट करना स्टार्ट करो। तो फाइकोमाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता रहूंगा। फर्स्ट, mycelium is सिनोसिटिक एसेप्टेट। mycelium is सिनोसिटिक एसेप्टेट। तो मैंने आपसे कहा कि जहां पे आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो मैंने कहा कि माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम है सिनोसिटिक और एसेप्टेट माइसीलियम। सिनोसिटिक एसेप्टेट का माइसीलियम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि एक ऐसा माइसीलिया है जिसमें क्या है, इस माइसीलिया में बीच बीच में यहाँ पर कहीं पर न्यूक्लियस फ्लोट कर रही है ना। तो यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन को क्या बोलते हैं? आफिया क्लियर है कि नहीं? लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, Yes, sir. क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं ना? No, sir. ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिसेलुलर, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर, और कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो माइसीलिया इसका सिनोसिटिक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। सेल वॉल, इसीलिए इसको एल्गल फंजाई कहा जाता है। ठीक है, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, while in some cases in some cases while in some cases chitin is while in some cases chitin is found. Next one, asexual reproduction takes place by asexual reproduction takes place by sporangio asexual reproduction takes place by sporangiospoor. अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं, है ना, तो समझो आप यार, स्पोरेंजियोस्पोर में ये आपका एक माइसीलियम हो गया, अब ये नॉर्मल एक माइसीलिया हो गया। अब इस माइसीलिया में एक वर्टिकल माइसीलियम का फॉर्मेशन है ना, जब भी ये मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तो एक वर्टिकल माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। इस वर्टिकल माइसीलियम के ऊपर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, है ना, इसे स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, इन स्पोर्स को हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, राइट।
ये रप्चर हो जाते हैं और फैल जाते हैं, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नोट इट डाउन। Yes. नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्वेटिक कंडीशन, अब ये तो बात हो गई टेरेस्ट्रियल में। अभी हम थोड़ी देर पहले देखा फाइटोथोरा क्या करता है, वो जूस स्पिट करता है। नोट करेंगे, इन एक्वेटिक कंडीशन, इन एक्वेटिक कंडीशन zoospores, in aquatic condition zoospores are produced। तो मैंने आपसे बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर से, लेकिन अगर इनमें से कुछ मेंबर जो एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, तो उनमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब जूस्पोर्स कैसे होते हैं, तो जूस्पोर सिंपली होते हैं, जूस्पोर इस तरह के स्पोरेंजिया के अंदर बंद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। इसे बोलेंगे हम लोग जू स्पोरेंजिया। तो जू स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर इसके अंदर बंद होते हैं। जू स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर इस तरह के जू स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना, ये जू स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जू स्पोर्स हैं, ये जू स्पोर बाहर निकल के आते हैं ना। और जू स्पोर कैसे होते हैं, ये जू स्पोर मोटाइल होते हैं। तो इस तरह से मोटाइल जू स्पोर्स का ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। नोट कर लीजिए, दोनों नोट कीजिए, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। नोट कर लिया, Yes, sir. ओके। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by, sexual reproduction takes place by gametangial, sexual reproduction takes place by gametangial contact, sexual reproduction takes place by gametangial contact। अब देखो गैमेटेंजियल कांटेक्ट कैसे होता है। देखो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है कि मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ये आपका एक नॉर्मली माइसीलियम या हाइफा है, इसी माइसीलियम या हाइफा के ऊपर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो हम लोग यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते क्या है, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को ऊगोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम कहते हैं, है ना। अब ऊगोनियम के साथ में क्या होता है, यहीं पर इसी के साथ में, है ना, इसी के साथ में, इसी ब्रांच के साथ में, इसी सेम ब्रांच में यहीं पर एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्चुअली इसी से ऐसे चिपका हुआ होता है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथीरिडियम। ठीक है, मैच्योरिटी अटेन करने के बाद एंथीरिडियम क्या करता है, यहाँ पे एक ट्यूब के थ्रू पंक्चर करता है ना। तो ये क्या होती है, ये कांटेक्ट ट्यूब होती है, तो ट्यूब के थ्रू पंचर करता है। ट्यूब के थ्रू पंचर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अपनी जो न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। डायग्राम नोट करते जाइए। तो दोनों में क्या हुआ, अब फाइनली क्या होगा, अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद अब एंथ्रीडियम का तो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर हो गया। जब एंथ्रीडियम का पूरा प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगी, है ना। और एक तो ये हो गई मेल वाली न्यूक्लियस, है ना, और दूसरी हो गई ये फीमेल वाली न्यूक्लियस, है ना। मेल फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाती हैं। मेल फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज होने के बाद ये डिप्लॉयड हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम oospore बोलते हैं। ये चीज और लिख लो आप। Sir, written. ओके, सो नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ oospore, formation of oospore takes place, formation of oospore takes place by
formation of oospore takes place by sexual reproduction. Sexual reproduction. तो ये था हमारा फाइकोमास्टिस. क्लियर है? Yes, sir. तो बताओ फिर इसे एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं हम लोग? Sir, because इसमें cellulose present होती है. Very good, कुछ कुछ excellent. में. Right, very good. Actually, that could be a question, right? So now come to the second fungi. Now the second class of the fungi is Zygomastis, which is actually missing in your NCERT, but you will get number of the question in your NEET examination, and you will actually see the number of question, and it is missing in NCERT. That is the bad thing, and actually it should not be there. Like it should be there. It should not happen with the NCERT. They must have give you complete classification. Actually, they are giving the questions in this your NEET examination, but they have not mentioned Zygomastis in your NCERT. So that is irony. So the second class, so class 2, so class 1 was Phycomycetes, called Zygomycetes. In Zygomycetes, so Zygomycetes are known as conjugation fungi. Conjugation fungi. Actually, because of their reproduction through conjugation, that's why they are called conjugation fungi. So always remember their second name. So they are called conjugation fungi. अब देखो जो conjugation fungi है, इनका एग्जाम्पल कौन है? इनके अभी कई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं. जैसे कि आप देखेंगे इसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, आप इसमें से जानते हो, राइजोपस का नाम सुना होगा ना? Yes, sir. राइजोपस है ना? तो जो राइजोपस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोलते हो, है ना? तो नॉर्मली ब्रेड मोल्ड इसी को बोला जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड. तो राइजोपस को हम लोग ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, है ना? दूसरा एक और फंजाई होता है, तो ये तो ब्लैक, ये ब्रेड में ग्रो कर जाता है. आपने देखा भी होगा कि ब्रेड के ऊपर एक माइसीलियम इसके ग्रो कर जाता है. दूसरा है हमारा म्यूकर, है ना? म्यूकर को एक्चुअली हम लोग डंग मोल्ड बोलते हैं, डंग मोल्ड, है ना? तो जो डंग मोल्ड होता है, एक्चुअली ये काउ डंग वगैरह जो होते हैं, बुफेलो डंग वगैरह होता है, उसके ऊपर उगाता है ना, ग्रो कर जाता है. तो ऐसे फंजाई को जो एक्सक्लूसिवली डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको कहते क्या है? दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड. Any idea? The fungi which grow on dung. देखो, तो जो सड़ी गली चीजों पे, रोटन चीजों पे ग्रो करते हैं, उनको तो हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं, है ना? तो ऐसे फंजाई को जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम कैप्रोफिलस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? याद रखना, Caprophilus. कैप्रोफिलस. कैप्रोफिलस, ठीक है? रैबिट जानते हो? रैबिट, रैबिट देखा है ना? अफिया, रैबिट देखा है? Yes, sir. कैसे लगते हैं? अच्छे होते हैं? Yes, sir. पक्का? आर यू श्योर? ठीक है, तो मैं जो बताने वाला हूं उसके बाद तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे. दे आर कैप्रोफैगस. अब जानते हो कैप्रोफैगस क्या होते हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. कैप्रोफिलस मींस दोस फंजाई और दोस प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो ऑन स्टूल और फिशेस. कैप्रोफैगस वो होते हैं जो अपने ही स्टूल को खा जाते हैं. समझ आया? That's Yes, what sir. rabbit do. So rabbit are caprophagous. Very bad one. So still they are good one or not? No, sir. So they look very pretty, but whenever I see, I feel a very yuck kind of feeling whenever I see rabbit. So okay. So there are two examples, Rhizopus and Mucor. Always remember Caprophilus and Caprophagus. If you want to note it down, you can. This is the actual question. Caprophilus and Caprophagus. So Caprophilus are those which grow on like dung. Caprophagus which eat their own dung. Okay. So these are two examples. Now note it down. The characteristic of fungi, Zygomystes. First, they are terrestrial fungi, means mainly they are grow on land. They are terrestrial fungi, mostly saprophytic. They are terrestrial fungi,
mostly saprophytic and rarely parasitic. Next point. Again, we call them lower fungi actually. If you look, the fungi which have aseptate mycelium, they are lower fungi. Which have septate mycelium, they are advanced fungi. So that is the only divide between the lower one and advanced, right? Next. So they have cenocytic mycelium. They have cenocytic mycelium, that is multinucleate, and aseptate, that is multinucleate and aseptate. Next one. Hyphal wall contain chitin. Hyphal wall contain chitin or fungal cellulose. Hyphal wall contain chitin or fungal cellulose. Next point. Motile cells, very important point, right? Very important. Motile cells are absent in life cycle. Means neither they have motile gamete nor they have any motile asexual spore. Motile cells are absent from life cycle. Next one. Asexual reproduction takes place through sporangiosपोर. स्पोरेंजियोस्पोर तो पता है ना आपको, अभी हमने डिस्कस किया. Yes, sir. Asexual reproduction takes place through sporangiosपोर. तो यहाँ पे आपको देखो आफिया दो चीजों पे ध्यान देना है. एक तो कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और कौन सा फंजाई कौन डिजीज कॉज करता है. बस इतना ही चीज नीट पे क्वेश्चन है. और आपके स्कूल वाले अगर पूछेंगे, अगर स्कूल में अभी तक नहीं आया तो स्कूल में पूछा जाएगा तो कोई क्लास फंजाई की पूछना कि जाइगोमास्टिस बता दो, एस्को बता दो, वेसिडियो बता दो, ऐसे कुछ. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट. Sexual reproduction occurs through gametangial copulation. Sexual reproduction occurs through gametangial copulation. अब देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होती क्या चीज. व्हाट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन? देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में एक ये हाइफा होता है, ध्यान समझना मेरी बात को. तो सपोज दैट एक ये हाइफा है, हम एक को मेल मान लेते हैं मतलब प्लस मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं फीमेल मतलब माइनस मान लेते हैं. तो प्लस और माइनस हो गया है ना. तो एक मेल हाइफा होता है, एक फीमेल हाइफा. अब क्या होता है, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये एक हाइफा में है ना, तो एक ये हाइफा हो गया, इसमें इस तरह से कुछ पार्ट बल्ज आउट होता है, इस तरह से एक प्रोट्यूबरेंस बल्ज आउट होती है. और ऐसे ही क्या होता है कि दूसरे वाले हाइफा में है ना, उसमें भी इस तरह से एक प्रोट्यूबरेंस हॉरिजॉन्टली निकलती है. ठीक है. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ये जो प्रोट्यूबरेंस निकलती है, इस प्रोट्यूबरेंस के बीच में एक सेप्टा डेवलप हो जाता है तो ये सिनोसिटिक है ना, सेप्टा डेवलप हो जाता है. और सेप्टा डेवलप होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाता है ना. अब दूसरे वाले में भी देखो यही होता है, दूसरे वाले में भी यही होता है. इसमें भी एक सेप्टा डेवलप हो गया है ना, और इस सेप्टा के अंदर यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से ये डेवलप हो गए है ना, और ये दोनों आपस में फीज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटेंजियल क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं. और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें गैमेटेंजिया बोलते हैं. ठीक है. तो गैमेटेंजियल, इस प्रोसेस को हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जाइगोमास्टिस में
वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लीजिए। Sir, done. इसके नीचे एक पॉइंट लिखो कि आखिर हम लोग इसको कॉन्जुगेशन फंजाई क्यों बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे बातें हैं, ये जो प्रोसेस है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की, इसी को हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं, और इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोमास्टीज में ही पाया जाता है, इसलिए इनको हम कॉन्जुगेशन फंजाई नोट करेंगे। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन is also known as gamitangial copulation is also known as conjugation. Gamitangial copulation is also known as conjugation. Hence, they are called conjugation fungi. Hence, they are called conjugation fungi. नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये गैमीट मल्टीन्यूक्लिएट गैमीट है ना, तो गैमेटेंजिया जो बने मल्टीन्यूक्लिएट है, तो गैमीट मल्टीन्यूक्लिएट है, तो हम क्या कहते हैं, जब मल्टीन्यूक्लिएट कोई सेल होती है उसको सिनोसिटिक बोलते हैं, तो यहां पर ऐसे गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके लिए टर्म यूज करते हैं सीनोगैमीट या गैमीट। नोट करेंगे। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, gametes are multinucleate, hence they are called, gametes are multinucleate, hence they are called xenogamete. Gametes are multinucleate, hence they are called xenogamete. Next point, after fertilization, oospore is produced. After fertilization, oospore is produced. oospore हम लोग अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। oospore क्या होता है, इनका रिजल्टेंट जो होता है उसको oospore बोलते हैं। जाइगोमास्टिस क्लियर है आफिया? Yes, sir. ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, है ना, थर्ड जो हमारा है दैट इज एस्कोमास्टिस। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एस्कस कहते हैं, और उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, इसीलिए इस क्लास को हम लोग एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज फंजाई वो होते हैं, है ना, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू एस्कोमाइसिटीज मैं आपको जरा वो दिखाना चाह रहा था, डायग्राम जो मैं आपको मिस हो गया, मैंने आपको दिखाया नहीं। मैं आपको म्यूकर का या राइजोपस का एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो मैं इनफैक्ट आपको राइजोपस का डायग्राम, और म्यूकर और राइजोपस ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे, बिल्कुल एक जैसे, देयर इज नथिंग सिमिलर, नथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग इज सिमिलर। लुक, दिस इज एक्चुअली राइजोपस, और म्यूकर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो माइसिलियम इसको हम स्टोलन बोलते हैं, और जिसके ऊपर स्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर का मतलब होता है स्पोरेंजिया, फोर मींस होता है बियरिंग ब्रांचेस, स्पोरेंजिया बियरिंग ब्रांचेस। नीचे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए राइजोइड्स लगे होते हैं, है ना, और ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम। ठीक है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। Sir, ले लिया। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं एस्कोमाइस्टीज। तो एस्कोमाइस्टीज में, है ना, मैंने आपको बताया कि एस्कस का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने मेडिकल में कई बार पूछा, देखा, ये पूछा गया कि हाउ मेनी एस्कस आर फॉर्म्ड इन एस्कोस्पोर। तो आंसर एक्चुअली उसका आइडियली आंसर होता है 8, है ना, और अगर 8 के अलावा एक और ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 8, तो ज्यादा सही आंसर होगा 4 और 8।
क्योंकि किसी भी एस्कस के अंदर या तो 4 स्कोर हो सकते हैं या 8 स्कोर होते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। ये पक्का नहीं है कि 8 ही होंगे, बट 99% क्या 90% मान के चलो 8 ही होंगे, बट 10% ये भी चांसेस है कि 4 भी हो सकते हैं, तो इधर 4 और 8, राइट। सो दैट वाज एक्चुअली आंसर। तो ठीक है, एस्कोमाइस्टीज के जो मेंबर हैं, है ना, तो इसके मेंबर मैं आपको पहले दिखाता हूँ। एस्कोमाइसिस, मॉर्शेला इसका मेंबर है। मॉर्शेला, अच्छा, इनको पिगमेंटेड मोल्ड भी कहा जाता है, ये कलर्ड भी होते हैं। तो एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मेंबर ये होता है, मॉर्शेला, है ना। तो ये एक फंगस है मॉर्शेला, और ये इस तरह का दिखाई देता है। इंटरनली ये इस तरह के माइसीलियम से मिलकर बना हुआ होता है ना। और अब इसमें देखोगे, आप देखते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये जो माइसीलियम है, ये एक्चुअली डाइकैरियोटिक माइसीलियम, मतलब कि हर माइसीलियम में, हर सेल में 2 न्यूक्लियस पाई जाती हैं। ये देखो, हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होती हैं। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो देखो, न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या हुआ, एक डिप्लॉइड सेल बनी, उसमें मियोसिस हुई। तो हमें पता है मियोसिस में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद माइटोसिस होती है। कई बार क्या होता है कि मियोसिस हुई और माइटोसिस फिर नहीं हुई, तो 4 ही बनेंगे, लेकिन अगर मियोसिस के बाद नॉर्मली माइटोसिस होती है तो 8 बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एस्कस कहलाता है, और इसके अंदर जो स्पोर पड़े हैं उसको एस्कोस्पोर बोलते हैं। ये एस्कोस्पोर फैलते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद आप देखेंगे यहां पर यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर माइसीलियम बनता है। क्लियर है अफिया? यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर माइसीलियम। Sir, repeat, please. देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ये बाई न्यूक्लिएट ये होते हैं, माइसीलियम होते हैं। इनकी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती हैं। तो अब क्या हुआ, ये सेल डिप्लॉइड हो गई। अब इसी सेल के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस की प्रोसेस में हमको पता है कि एक न्यूक्लियस के डिवाइड करने पे 4 न्यूक्लियस बनेंगे। ये देखो 4 बनती है ना। उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 बनती है, तो 4 से कितनी बनेंगी, 8। तो नॉर्मली मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था कि नॉर्मली एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर या 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, ये एस्कस फट जाता है, रप्चर कर जाता है, एस्कोस्पोर बाहर गिरते हैं, एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद जब एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे माइसीलिया का फॉर्मेशन। अब ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट माइसीलिया बनते हैं, किससे, एस्कोस्पोर से। अब ये माइसीलिया क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। माइसीलियम के फ्यूज होने से फिर से क्या होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना? तो एक तो अच्छा, एक और बात बताऊं, मैं एक टर्म बताता हूं, डिड यू लिसन और नॉट? ये जानते हो क्या ये? बोलो भाई, ये टर्म सुना है कभी? No, sir. हाँ, गुची सुना है? गुकी नहीं, वो तो पक्का सुना होगा। क्यों? गुच्ची सुना है? दोनों ही महंगे हैं, बहुत कॉस्टली दोनों ही। Yes, sir. Brand. हाँ, वो ब्रांड है, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। वो तो सबने, वो तो आप पक्का सुना होगा, लड़कियां तो पक्का, फीमेल्स को तो पक्का पता होता है ब्रांड, है ना, गुच्ची। तो एक एक्चुअली क्या होता है कि एक गुच्ची इज अ टाइप ऑफ फंजाई। ये फंजाई इंडिया में उगता है, और ये नेचुरली उगता है, इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। ये नेचुरली फॉरेस्ट में उगता है, एंड दिस इज द कॉस्टलीस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली की मार्केट में इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ दिल्ली की मार्केट, दिल्ली की मार्केट में अप्रोक्सीमेटली इसकी कीमत 30,000 रुपए किलो होगी, 30,000। इस फंजाई की कीमत, एडिबल फंजाई है, इसकी वेजिटेबल है, और इस एडिबल फंजाई की कीमत दिल्ली की मार्केट में 30,000 रुपीज पर केजी, है ना। अब ये जो फंजाई है ना, एस्कोमाइस्टिस, राइट, गुची, तो ये इसी का मेंबर है। मॉर्शेला भी इसी का मेंबर है ना। तो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, गुची, है ना।
और मेनली कहाँ पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है इंडिया में, हिमाचल में पाया जाता है, हिमाचल वाले पार्ट गुची फंजाई। बाकी अब इसके बाद देख लेना, है ना? और ये फंजाई जैसा दिखता भी नहीं। एक इसका और मेंबर है ना? तो एक तो मैंने आपको बताया मॉर्शेला, ना? तो गुची भी इसी का मेंबर है और मॉर्शेला भी इसका मेंबर है। मॉर्शेला, मॉर्शेला को हम लोग मॉरल कहते हैं, मॉरल भी कहते हैं, है ना? अब एक और बताओ, ये इसका नाम सुना हुआ है? पेनिसिलियम का नाम सुना हुआ है? Yes, sir. क्या काम करता है? Sir, penicillium, sir, medicine. वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो, इससे एक मेडिसिन डेराइव की जाती है इस फंगल से। इसका सीक्रेशन होता है एक्चुअली। उस पेनिसिलिन को, उसको बोलते हैं हम लोग पेनिसिलिन, है ना? उसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन निकालते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी बात पे बता दो कि किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया, वो इसी फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम उसका पूरा नाम था। पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट किया गया, पेनिसिलिन उसका नाम था। और इस एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट करने वाला जो बंदा था, उसका बंदे का नाम था, मैं ये बताता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम सुना है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका नाम था, कहीं कहीं फ्लेमिंग लिखा होगा सिर्फ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो एंटीबायोटिक डिराइव किया था, वो पेनिसिलियम से डिराइव किया हुआ था। ठीक है। एक और फंजाई है एस्परजिलस, है ना? एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। एस्परजिलस से एक्चुअली क्या करते हैं? एस्परजिलस से हम लोग यहां से अल्कोहल डिराइव करते हैं, है ना? वी डिराइव अल्कोहल इन जापान। तो हम इससे क्या करते हैं? जापान में अल्कोहल डिराइव करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. गुची, मॉर्शेला, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है। अब मैं आपको इसमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस का किसी का एक का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके स्कूल में आए तो आप पेनिसिलियम का, मॉर्शेला का तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया नीट के एंगल से। मॉर्शेला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डायग्राम। मैं आपको पेनिसिलियम नोटेटम का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली पेनिसिलियम नोटेटम है ना? अब देखो क्या होता है, समझो बात को। ये नेमली इसका माइसिलिया हो गया, है ना? और ये हाइफा हो गया, ये कोनिडियोफोर हो गए। एक्चुअली इसके ऊपर जो ये एक्सटर्नली जो स्पोर्स आपको दिखाई, इनको हम कोनिडियम कहते हैं या कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया जिन पे ग्रो करते हैं उनको फिलिडेई बोलते हैं, है ना? और जिन ब्रांच के ऊपर कोनिडिया, उनको कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर मींस कोनिडिया बियरिंग ब्रांचेस, राइट? और ये हमारे हाइफा हो गया और ये माइसिलियम, राइट? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, पेनिसिलियम। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट करिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, इसी का मेंबर कौन है? इसका मेंबर एक और है, इसका मेंबर है ईस्ट। ईस्ट भी इसी का। और ईस्ट के ही पास में यही लिखना, दिस इज द ओनली यूनिसेलुलर फंगस। नोट करेंगे, ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंगस यूज्ड इन baking industry. Yeast is the only unicellular fungus used in baking industry. चलिए, फर्स्ट पॉइंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। they are called they are called pigmented mold. They are called pigmented mold as they are of they are called pigmented mold as they are of different color, like as they are of different color like brown, green, brown, green, pink and blue. Brown, green, pink and blue. ठीक है? Next point. The mycelia is
partially septate. Mycelia is partially septate. Mycelia is partially septate as they have septal pore. Partially septate as they have septal pore. Mycelia is partially septate as they have septal pore. Next point. Cell wall is made up of chitin or fungal cellulose. Cell wall is made up of chitin or fungal cellulose. Chitin or fungal cellulose. Next point. The motile structure do not occur in life cycle. Next point. In majority of ascomycetes, asexual reproduction takes place through conidia formation. अब देखो कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस तरह से ये एक हाइफा होता है, लेटरल हाइफा होता है, इसके ऊपर एक वर्टिकल हाइफा का फॉर्मेशन। इस वर्टिकल हाइफा के ऊपर यहाँ पर है ना, इस तरह से कोई भी चीज बल्ज आउट होती है ना, मतलब एक स्ट्रक्चर बल्ड आउट होता है ना। तो ये ब्रांच होती है, इसको हम लोग कोनिडियोफोर बोलेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि कहीं पे भी बायोलॉजी में अगर फोर लगा, फोर का मतलब होता है बियरिंग, तो कोनिडियोफोर का मतलब हुआ कोनिडिया बियरिंग ब्रांचेस, इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर क्या होता है, इस तरह से एक्सटर्नली बाहर की तरफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो चैन की जैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इनको हम कोनिडिया कहते हैं, है ना। तो देखो कोनिडिया एक्चुअली बाहर की तरफ बनते हैं, है ना, तो हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर बोलते हैं। क्लियर है ना, ठीक है आफिया। और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे स्पोर थे, अंदर बन रहे थे, क्या बोलेंगे उनको, इंडोस्पोर। वेरी गुड, एंडोस्पोर बोलेंगे। तो जो स्पोर अंदर बने उनको एंडोस्पोर बोलेंगे और इनको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर। ठीक है, नोट कर लो डायग्राम। स्पोर्स और डिजीज, दो चीज आपको फंजाई में बिल्कुल दिमाग में रखनी है। अगर आपको नीट का क्वेश्चन पूरा अटेंड करना है तो दो चीज आपकी बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction takes place through fusion of somatic cell. Sexual reproduction takes place through
फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल, ठीक है। तो क्या होता है, अब सोमेटिक सेल के थ्रू फ्यूजन कैसे होता है मैं बताता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सोमेटिक सेल के फ्यूजन होता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर दो हाइफा होते हैं। अब सोमेटिक सेल कैसे फ्यूज होते हैं, तो जो गैमीट होती है उनको गैमेटिक सेल बोलते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, है ना। ये हो गया। पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव, है ना। अब देखो इस तरह से हाइफा बनते हैं, तो सोमेटिक फ्यूजन इस तरह से होता है। दूसरा वाला हाइफा भी फ्यूज हो गया, तो हम इस तरह से इसको पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए क्योंकि दोनों हाइफा में सिर्फ एक ही डिफरेंस, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये वाले जो हाइफा है इनको तो हम प्राइमरी हाइफा ही बोलते हैं, प्राइमरी बासिलियम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक ये वाली न्यूक्लियस हो गई और ये वाली न्यूक्लियस, ये दोनों क्या होती है, अभी तो हम इसको डाइकैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक। आगे चल के मैंने आपको बताया कि डाइकैरियोटिक जो हाइफा होते हैं, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस होती है, फ्यूज हो जाती है। इस तरह के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स के थ्रू फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो। अभी क्या है, डाइकैरियोटिक सेल। अब डाइक्रोटिक सेल में क्या होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ, आगे का भी बता देता हूँ मैं। आफिया समझो, आफिया पहले समझ लो, इसको हम डाइक्रोटिक सेल बोलेंगे। अब डाइक्रोटिक सेल में क्या हुआ कि इस डाइक्रोटिक सेल में इसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो, तो कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गई ना। पता हुई कि नहीं हुई, है ना। Yes, sir. अब इसको हम लोग बोलेंगे आफिया एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब ये एस्कस मदर सेल जो होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब होता है, मियोसिस। अच्छा, Yes, sir. मियोसिस में एक से कितनी सेल बनती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कितनी बनती है, एक से चार। So 4. फोर न्यूक्लियस बनेंगे ना, है ना, फोर न्यूक्लियस बन गई, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, सम टाइम माइटोसिस डू नॉट अकर, तो चार ही बनेंगे, चार स्क्वायर स्पोर। बट जनरली क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होती है, नॉर्मल डिवीजन। तो माइटोसिस में हमको पता है एक से कितने बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल हो जाएंगे, है ना। तो ये 8 बन जाएंगे और ये 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, एस्कोस्पोर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कस। समझ में आ गया ना, एस्कस एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। Yes, sir. नोट करके बताना आफिया।
Sir, done. ओके, तो नोट करेंगे डाइकैरियोटिक सेल function as dikaryotic cell functions as eschus mother cell. Dikaryotic cell function as eschus mother cell. Full stop. It undergoes karyogamy, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन. It undergoes karyogamy, then meiosis. It undergoes karyogamy, then meiosis, and followed by mitosis. Then meiosis and followed by mitosis. Full stop. By this process, generally 4 to 8 by this process generally 4 to 8 ascospore 4 to 8 ascospore are produced. 4 to 8 ascospores are produced. Okay, so this is all about the ascomycetes. Clear है भाई? आफिया? Yes, sir. तो ये हमारा ascomycetes. अब नेक्स्ट आते हैं basidiomycetes. चलो अब देखो basidiomycetes की बात. अगेन बेसिडियोमाइस्टिस को बेसिडियोमाइस्टिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, बेसिडियोमाइस्टिस हम लोग बोलते हैं बेसिडियोमाइस्टिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका? बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है ना. अभी देखेंगे कि बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं. तो नॉर्मली तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली बेसिडियोस्पोर होते क्या है. तो बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है और एक बेसिडियोस्पोर के ऊपर जनरली एक बेसिडियम के ऊपर जनरली 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं. देखो किसी एक माइसिलियम हो गया, इसके ऊपर वर्टिकल इस तरह से एक ब्रांच बनती है. इस वर्टिकल ब्रांच के ऊपर इस वर्टिकल ब्रांच के ऊपर इस तरह से है ना एक क्राउन शेप की स्ट्रक्चर बनता है. इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम, है ना. और इस बेसिडियम के ऊपर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कितने बेसिडियोस्पोर बनते हैं. तो ये बेसिडियम के ऊपर क्राउन शेप, ये क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर. इनको हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं, है ना. तो इस तरह से इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिडियोमाइस्टीज बोलते हैं. क्लियर है? बना लो, ड्रॉ कर लो फिर बेसिडियोस्पोर ड्रॉ कर लो. मैं आगे लिखवाता हूँ. Sir, done. डन, ठीक है. तो चलो नोट करो. mycelium is septate. Mycelium is septate. Mycelium is septate and fructification is often large. Fructification is often large. Mycelium is septate and often fructification is large. फ्रूटिफिकेशन समझते हो ना, रिप्रोडक्टिव बॉडी, है ना. तो अब पहले तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं.
बेसिडियोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। क्या बोलते हैं उसको टेक्निकली, क्या नाम है उसका मशरूम का? मशरूम क्या कहते हैं आफिया? एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस, एगरीकस कॉम्पेस्ट्रिस, एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये हो गया एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस, है ना। तो एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस मशरूम होता है। अब मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस, सीधे मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। देखो आफिया, ये क्या है? एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस है ना। ये इसमें नीचे रिप्रोडक्टिव बॉडी, इसको हम फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं, जो आपको दिखाई देता है इसको फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो इसमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स में एक्चुअली बेसिडियम पाए जाते हैं, और बेसिडियम में हमने पढ़ा कि बेसिडियम में ये 4 स्पोर बनते हैं, इनको हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। बीच में स्टेराइल टिश्यूज पाए जाते हैं, इनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। अब क्या होता है, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर गिर जाते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं, बटन शेप स्ट्रक्चर का बनाते हैं, बटन बड़ा हो जाता है, इसी को हम मशरूम बना के खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब बटन ज्यादा मैच्योर हो जाता है, एडवांस बटन हो जाता है, जो खुल जाता है, ऊपर वाला है जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम पाइलस कहते हैं, है ना। और ये जो बीच में इसकी वॉल ब्रेकन है, इसको हमको क्या बोलते हैं, इसको वेल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया मशरूम, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसके कुछ और मेंबर हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये तो चलो सैप्रोफाइट होता है, लेकिन कुछ एक्चुअली पैरासिटिक फंजाई भी है ना, इसके पैरासिटिक मेंबर है। तो इसके पैरासिटिक दोस्तों में से मैं बताऊं कौन कौन पैरासिटिक फ्रेंड्स है इसके, है ना। तो पहला क्या है, पहला ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, एक डिजीज होती है। तो वो किससे होती है मैं बताता हूं, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रैमनिस। पक्सीनिया ग्रैमनिस एक फंगस है, पक्सीनिया ग्रैमनिस। पक्सीनिया ग्रैमनिस एक डिजीज कॉज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रस्ट, और ये मेनली व्हीट में कॉज करता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट causes black rust of wheat. So this is responsible for black rust of wheat, right? Pachynia graminis। और ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। वो होता क्या है कि इसमें जो ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडरी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। एक और डिजीज है स्मट ऑफ कॉर्न। वो स्मट किससे होती है? स्मट होती है अस्ट्रेलागोमाइटिस से। सबसे ज्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चन में फाइटोप्थोरा के बाद ये है, अस्ट्रेलागोमाइटिस, MAYTIS, अस्ट्रेलागोमाइटिस। ये क्या करता है? स्मट ऑफ कॉर्न, स्मट ऑफ कॉर्न। तो कॉर्न के जो कॉब्स होते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं, उनको खराब करने का काम करता है ना। थर्ड मैंने आपको बताया था मशरूम, जिसको हम एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। तो मशरूम तो मैंने आपको बता ही दिया। ये इसके 3 एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। पक्षीना जरूर याद रखना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। और अस्ट्रागो, ये बहुत फाइटोप्थोरा, अल्बिगो कैंडिडा, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, अस्ट्रागोमाइटिस, ये चारों कई बार मैच दी फॉलोइंग में मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में देखे, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में देखे, तो अलग अलग तरह से पूछे गए, बहुत पूछे गए। नोट करके बताइए, फिर आगे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक नोट करें। Sir, written. ओके, अब एक नोट करके लिखो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पावरफुल जो वर्ल्ड के डिकम्पोजर है वो फंजाई है, और फंजाई में भी सबसे पावरफुल जो डिकम्पोजर है वो क्या है, कौन है? बेसिडियोमाइसिटीज। रीजन क्या होता है कि बैक्टीरिया दूसरे डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वुड को डिकम्पोज करें। बाकी फंजाई वुड को डिकम्पोज तो कर सकते हैं, लेकिन वुड में एक मटेरियल होता है लिग्निन। लिग्निन को डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी किसी फंजाई में नहीं, एक्सेप्ट बेसिडियोमाइसिटीज। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिडियोमाइसिटीज आर द मोस्ट पावरफुल फंजाई ऑफ द डिकम्पोजर ऑफ द वर्ल्ड। नोट करेंगे।
they are the best decomposer of wood. They are the best decomposer of wood. Full stop. In fact, they are the most powerful. In fact, they are the most powerful decomposer of world, because they have capability to decompose, cellulose and lignin, because they have capability to decompose cellulose and lignin, which cannot be decomposed by bacteria or other fungi, ये important question है, it's a neat question. Next, they have primary unicellular mycelia and secondary dikaryotic mycelia. हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही चुके हैं. तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी माइसीलिया. जो डाइकैरियोटिक होते हैं उनको सेकेंडरी माइसीलिया बोलते हैं. दे हैव प्राइमरी यूनिसेलुलर and secondary dikaryotic mycelia. Next one, sexual reproduction do not involve formation of sex organ. It occurs through somatic fusion. ठीक है. Next, नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव. अच्छा, डोलीपोर सेप्टम याद है आफिया? डोलीपोर सेप्टम, Yes, sir. डोलीपोर सेप्टम याद है? डोलीपोर सेप्टम बताया था पंजाई में. देखो, मैंने बताया था कि माइसीलिया कैसे होते हैं, यहाँ पे पार्शियली सेप्टेट होते हैं. तो पार्शियली सेप्टेट में तो बीच में सेंट्रल पोर होता है, याद है ना? ये तो पता है. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिडियोमाइसीटीज में, ये जो सेप्टल पोर होता है ये इस तरह से बैरल शेप्ड होता है इसको. तो दिस इज बैरल शेप्ड, सेंट्रल पोर है ना. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डोलीपोर सेप्टम. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो. ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, पूछा हुआ डोलीपोर सेप्टम किसे पाया जाता है. तो आपको याद रखना बेसिडियोमाइसीटीज का कैरेक्टरिस्टिक है.
sir, written. नोट करेंगे. Septa possess dolipore septum. Septa possess dolipore septum, which is a characteristic of septa possess dolipore septum, which is a characteristic of basidiomycetes, which is a characteristic of basidiomycetes fungi, which is a characteristic of basidiomycetes fungi. Next point. और ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. The sexual reproduction in asexual reproduction, formation of basidiospore. In asexual reproduction, formation of basidiospore takes place. In asexual reproduction, formation of basidiospore takes place exogenously. Full stop. Generally, every basidia produces four basidiospore. Every basidia produces four basidiospore. Full stop. और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए. ठीक है, तो यहां तक बेसिडियोमाइसीटीज तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में अब आपको याद रखना पड़ेगा. आफिया हेडिंग डालो, ड्यूटेरोमाइसीटीज. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्यूटेरोमाइसीटीज, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इन सेंस फिर लाइकेन पढ़ाऊंगा. नोट कर लो चाहे, लाइकेन, माइकोराइजा और ड्यूटेरोमाइसीटीज. इतना मैं और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में पूछूं तो आप मुझे रिमाइंड कराओगे कि सर क्या पढ़ाना आपको. ठीक है ना, है ना. तो इसको यहीं तक रखते हैं. ठीक है, कोई डाउट? So, I have one doubt. Sure. So, in NCERT, Rhizopus and Albugo, these examples are given in phycomycetes, and you have said that these members come in zygomycetes. Yeah, actually that's what I was saying. Actually zygomycetes is missing in your NCERT. So in NCERT what they have done, they have incorporated zygomycetes in ascomycetes only. Yes, sir. समझ गए ना. तो अभी क्या है, हमने जो पढ़ा है ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन. उन्होंने क्या किया हुआ है कि zygomacetes और ascomycetes को मर्ज कर दिया एक साथ. ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को अलग पढ़ना. राइट, क्लियर? Okay, sir. क्यों? क्योंकि दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट है कि नहीं. Yes, sir. ठीक है, एक में फंगल सेल वॉल है, सेलुलोज है, और दूसरे में क्या है, काइटिन है. ये भी डिफरेंस है, इसलिए हमने बोला. ठीक है. Okay, sir. Thank और you. बताओ, और कोई क्वेश्चन? No, sir. फाइन. तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे रिमाइंड कराओगे और मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है.